Good evening, everyone. This is Sumit Srivastava once again with my another episode of In Conversation with Sumit. और आज जो मेरी गेस्ट है बहुत ही स्पेशल गेस्ट है. आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज अभी उनसे मुझे बात करने का मौका भी मिला था रिसेंटली एंड शी हैज ग्रेट क्लैरिटी एंड शी इज हेडिंग one of the most prominent departments of government of Rajasthan, that is science and technology, and we all are looking up to her, that what all she thinks about this pandemic, how she thinks, how she sees world after this pandemic. So एक कमाल की इनक्रेडिबल जर्नी रही है उनकी प्रशासनिक सेवा की. उसके बाद वो सिर्फ एक ब्यूरोक्रेट नहीं है, एक थिंकर भी है, एक राइटर है, एक पोएट है. कमाल की पर्सनालिटी. सो सबसे पहले लेट मी हैव हर ऑन द स्क्रीन और फिर मैं अपनी बातचीत आगे बढ़ाऊंगा. आप सब जानते हैं शी इज मिसेस मुग्धा सिन्हा. शी इज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान. Let me have her on the screen first, and then we'll take the conversation forward. Good evening, ma'am. Good evening. Very good evening, everyone. And thank you so much for giving your time. I know कैसा चल रहा है, कितने busy हैं आप लोग, और फिर भी आपने time निकाला. So really thankful. No, it's very nice because this offices have started, but this is post office. It's 7 o'clock, so it was comfortable. Thank you so much, Sumit, for having me on FB Live today. थैंक यू सो मच. और आपकी बातें भी मैं बताऊं मैम, आपसे बातचीत करने के बाद और इस एपिसोड के बाद लोगों का परसेप्शन थोड़ा चेंज होगा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को लेके. बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, बीइंग ए नॉर्मल रेजिडेंट, हमको लगता है बड़ा मुश्किल है. जो लोग ऊपर बैठे हैं उनका विजन है कि नहीं है, ये हम सोचते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट. बट आज क्लियर होगा मेरे जो व्यूअर्स हैं, ऑडियंस है. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैम, बहुत 30 मिनट्स में इसको हम खत्म करेंगे, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका. तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि जैसा मैं आपके इंट्रोडक्शन में बोल रहा था कि ब्यूरोक्रेट, तो मैं आपकी रिसर्च के बाद, आपके बारे में जानने के बाद मुझे लगा कि वो सब बाद में, जबकि आपकी इतनी शानदार जर्नी रही है, सब लोग जानते हैं. लेकिन आप एक पोएट हैं, एक थिंकर हैं, आप चीजों को अलग नजरिए से देखते हैं. जो भी थिंकर्स होते हैं, पोएट्स होते हैं. मैम, ये पेंडेमिक है और जो व्यूअर्स हैं, मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स आर इनोवेटर्स, बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स. तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ कि हाउ डू यू सी दिस पेंडेमिक? इसको आप एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, एक चैलेंज की तरह देख रहे हैं? आपका क्या कहना है इसके ऊपर? आई वांट दिस फ्रॉम यू, सो प्लीज आप बात करें इसके बारे में. Okay. So I see that this COVID-19, the pandemic that we are faced with all the issues that surround it, I see huge opportunity in this adversity, especially for the viewers who have joined us today, who are from the tech world. Because this entire thing, if you've seen the lockdown, the 21-day lockdown, after which, of course, we started going to the office, we realized that the entire government system, the entire educational system, and a lot of other, departments and private and public corporate people have all jumped onto the bandwagon of technology using different kind of online tech platforms. So I think I see in COVID this adversity a huge opportunity for the tech people who are our viewers, as I am told today. Also, because focus of the during the COVID and post the COVID will be on a lot of deep research, on a lot of invention, because as we know, necessity is the mother of invention, and we are seeing that because of the arising necessities that are coming out from the COVID requirements of containment and lockdown, there new things are happening. And also, I think what is important in the future will be for the tech people to appreciate that the technology has to be put in the service of mankind. Science, technology, information technology, programming, computational sciences, quantum research, all these things, innovation, all have to be focused on very, very utilitarian concept. If the idea is useful, if it is functional, then it is going to sustain in times to come. So I think there is huge opportunity. It's almost like the cloud with the silver lining. Absolutely. I think this is very well said. This a great opportunity for people, क्योंकि अभी consumer behavior is going to entirely changed. Social distancing. And today, if we are able to talk, ma'am, अगर ये physically करना होता तो it would have very, very difficult, right? So आज ये technology है जिसकी वजह से ma'am is with us and she is उनकी बातें दूर तक पहुंचेंगी. मैम एक मिनट, इसमें सबसे अच्छी चीज आपने सरकार से शुरू किया था
तो कोविड एक ऐसा टाइम है जहां पब्लिक सर्वेंट्स का पहली बार अप्रिसिएशन जो है वो आम जनता से, द सिविल सोसाइटी इज रियली अप्रिशिएटिव ऑफ द रोल, बिकॉज वाइल यू आर ऑल सिटिंग एट होम, वी आर ऑल गोइंग आउट एंड डूइंग आवर जॉब्स फॉर ऑल ऑफ यू. सो आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको मेरे ऑफिस आके अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ी है. टेक के माध्यम से आज हमारे और आपके बीच में जो परसीव्ड गैप है, परसीव्ड गैप कह रही हूं मैं, है नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट जो परसीव्ड गैप है वो कम हो गया है. तो टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़े लेवलर के रूप में भी आई है. और मुझे लगता है ये जो कम्युनिकेशन और कनेक्टिंग द डॉट्स है, मुझे लगता है कि ये सिविल सोसाइटी और सिविल सर्वेंट्स को जो करीब लाएगी एक दूसरे के. तो मुझे लगता है कि इससे जो है सिटीजन्स एंड कंज्यूमर्स और सिविल सोसाइटी पर बहुत एक अच्छा प्रभाव पड़ेगा, जो कि इस समय की जरूरत भी है. बहुत अच्छी एक लाइन बोली मैम आपने, परसीव्ड गैप. ये परसीव्ड गैप है. अब तो मैं कह सकता हूँ आपसे बातचीत करने के बाद और आपको जानने के बाद, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ प्लेस वेयर जहाँ हम सब लोग जाना चाहते हैं, अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं. बट अब तक परसीव्ड था कि ऐसा मुश्किल है, बट टेक्नोलॉजी ने इनेबल किया है मैम, क्योंकि सच में ऐसे करना मुश्किल होता है. लेकिन एक लाइन में मैम अभी आपने बोली ना, मैं चाहता हूँ उस पर बात करें. लोगों का जानना बहुत जरूरी है कि आपने बोला कि जब हम सब घर में बैठे, ऑफ कोर्स हम लॉकडाउन ही है, और आप लोग बहुत काम कर रहे हैं और आप कई जिम्मेदारियां आपने और भी ले रखी हैं. सो ये इज माय विश कि ये लोगों को पता चले, क्योंकि मुझे लास्ट कॉन्वर्सेशन में पता भी चला था, बट चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स जहां तक पहुंचेगी चीज. What steps are you taking? आप कहाँ बिजी हैं, कितना इन्वॉल्व हैं? आपका लॉकडाउन, जैसे मेरे लॉकडाउन के बारे में पूछे तो मैं घर में बंद हूँ और अपने अपने बिजनेस को थोड़ा ऑनलाइन करने की कोशिश करूँ. मैं मुग्धा सिन्हा मैम से जानना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन में कितने मजे कर रही हैं इन अ वे. अब आप उसको बता दें, लोगों को समझ में आ जाए कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ. लगता है कि जो सर्वाइवल का एक गुण है, जो चार्ल्स डार्विन ने भी अपनी किताब में लिखा है, तो मुझे लगता है जो एवोल्यूशन का प्रिंसिपल है कि ओनली द फिटेस्ट विल सर्वाइव. एंड आज के जमाने में हु इज द फिटेस्ट? द पर्सन हु हैज दिस ग्रेट instinct to adapt, right? So I think adaptability, because आप लोग सब देख रहे हो, adapt कर रहे हो चीजों को. So let me tell you, for me it has been very very difficult, because there is no support staff at all with me, and I have huge number of responsibilities, because from 1st of April, the lockdown happened on the 24th of March, and from in the next 7 days, because the financial year was ending, we decided that we must start working from the 1st of April. And from the 1st of April, we tied up with IIT Kanpur, IIT Delhi, and IIT Jodhpur, and also with huge number of premier institutions, including NASA. And we launched several webinars connecting the various research and science premier institutions of the country to various colleges, universities and research students, so that while they were sitting at home, they had something productive to do, and also because we could move our departments. We did huge number of lectures, and we are still continuing to do our intellectual property right, GI. We got professors from Delhi University, we got professors from TIFAC to speak to us. We launched a course in which we had 250 applicants, because we did a webinar as a part of an advertisement, where we collaborated with the Indian Astronomical Society of India and NASA. And our children are till the 14th of, we started on 13th of April, and it's going to be on till the 14th of May, where the children are working on finding asteroids. Because if you know, the planetary conditions these days is very very nice. You could see Venus with the 3 Pleiades, you could see Mars, Jupiter and Saturn from the 15th to the 17th of April in the sky. So a lot of interesting phenomena was taken. So as the secretary of the DST department, this is the time when we needed to put our skin in the game, and we have done it. So I have been busy right from the 1st of April. Apart from that, I was also part of the government of Rajasthan's task force for working on an economic strategy post-COVID. So we had meetings on various tech platforms. So we have now come up with a policy which has been accepted by the government, and it's also available on the public domain right now. Then apart from that, from the 17th of April, I was given this huge, tremendous responsibility along with other officers for all Rajasthani migrants who are working or visiting in Maharashtra and who would want any kind of help there. So we have been coordinating
And my own personal mobile numbers were made public, and they have been incessant number of calls. Yes, I was working almost like a call center. So at this Yeah. level of security, there are so many officers who have been put in charge of one state, and everybody is working towards ensuring that the migrant labor who are at the bottom rung of the pyramid are not in any way inconvenienced during this lockdown, and they have enough food, ration, medical help. And we are also looking out for pregnant women who need any kind of assistance, whose deliveries are due in this period. तो आई थिंक बहुत कुछ हम लोग ने किया है, तो शायद मेरे पास फुर्सत के लम्हे तो नहीं है, बट मेरी जो पर्सनैलिटी है वो जब मैं सबसे ज्यादा बिजी होती हूँ तो मैं सबसे ज्यादा टाइम अच्छा मैनेज करती हूँ। तो मैं बहुत सारा कुछ लिख भी रही हूँ, बहुत सारी चीजें जितनी मेरी वॉलंटरी एसोसिएशन है, जैसे मैं एलएसआ जो मैं जहाँ की पढ़ी हूँ, लेडी श्री राम कॉलेज, वहाँ की एग्जीक्यूटिव कमेटी में हूँ, तो वहां भी मैं कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। तो इस तरह से जो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज ये मुश्किल समय है और आसान समय किसी के लिए भी नहीं है। हमारे पास प्रिविलेज है कि हमारे पास खाना है, हमारे पास छत है, हमारे पास एक नौकरी है। तो मुझे लगता है कि ये समय वो है जब हमें, जिनके पास ये सब चीजें नहीं है, जिनके पास सोचने का भी और इस तरह की कॉन्वर्सेशन करने का भी समय नहीं है, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि आई फील ब्लेस्ड that government chose me, that the universe chose me, and has put me in touch of all those strangers. ये मेरा शायद कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्ट होगा, बिकॉज मैंने कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल लिखा था स्ट्रेंजर्स के ऊपर, और Yes. बहुत सारे स्ट्रेंजर्स से बात कर रही हूँ। तो मुझे लगता है कि हम जो कई बार यूनिवर्स से मांगते हैं वो हमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वापस मिलता है। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी बिजी and to doing all these kind of things, because आज के जमाने में हम कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तभी हम रेलेवेंट रहेंगे। तो आई थिंक ये मैसेज जो है वो सभी टेक वाले लोगों के लिए भी है कि प्लीज ensure that you remain relevant in the times that are changing, and you will remain relevant only when you undertake lot of responsibility. जैसे घर में बच्चा होता है, जो बच्चा घर में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी लेता है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो वो सुपरमैन का एक डायलॉग है ना, कि विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद ग्रेट पावर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसको हमेशा उल्टा बोलती हूँ, विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ग्रेट पावर, बिकॉज जो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। एंड नेवर नेवर हेजिटेट एंड थिंकिंग कि अगर आपको बहुत सारा काम दिया है तो आप उसको नहीं कर पाएंगे। हमेशा सोचिए कि काम आया है तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू आउटग्रो योर कंफर्ट जोन, एंड यू हैव टू आउटग्रो एंड राइज अप टू द ओकेशन, बिकॉज दैट इज अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि आपको, यू आर द चोजन वन, एंड इट इज एन इंडिकेशन। उसी तरह से कोविड भी वही इंडिकेशन हमारी जिंदगियों में है कि आइए हम एक नई परिवर्तन की ओर बढ़ें, एक नए दिशा की ओर बढ़ें, एक रीबूट करें अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी और अपने सोसाइटल थिंकिंग लेवल पर भी। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैम ने अभी जो बात बोली कि स्ट्रेंजर और ये लिखती भी हैं, मेरा ग्रेट कनेक्ट, और मैं जहाँ से स्ट्रिंग हुआ था कि मैम को मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा मेरे शो पे आए। इनके लिंक्डइन की प्रोफाइल पे आप जाएं या गवर्नमेंट पेज पे है, तो एक इनका आर्टिकल, वैसे तो 3 है जिसमें एक स्ट्रेंजर करके है, अगर आप उसको पढ़ लें सो ऐसा आपका हृदय परिवर्तन होगा। यू विल स्टार्ट फाइटिंग टू डू समथिंग फॉर पीपल जो लोग इस प्रॉब्लम में है। सो मैम इट वाज ग्रेट। और देखिए देखिए लिखने का कितना पावर होता है कि पढ़ के ऐसा लग रहा था कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर पीपल, ऐसे हम शांति से बैठे हुए थे। दैट वाज रियली ग्रेट। मैम एक क्वेश्चन मैं ऐसे आउट ऑफ द ब्लू पूछ रहा हूँ आपसे कि सी अभी मेरे दिमाग में अचानक आया है कि ये जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं, डोमेन्स की बात करूँ, टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, ये सारे हैं, आने वाले दौर में इनके बारे में मतलब जो भी डोमेन्स आपको लगते हैं कि आने वाले दौर में इनके लिए अपॉर्चुनिटी है, इनके लिए नहीं है, इनके लिए चैलेंज हो सकते हैं, तो आपका वो डोमेन स्पेसिफिक जो लोग हैं इनके लिए क्या सजेशन होगा पोस्ट कोविड एरा के लिए? क्योंकि हम लोग अभी अपने इकोसिस्टम में हम बात कर रहे हैं और वी आर वर्किंग रिलेंटलेसली सब लोग मिलके, तो हम बात कर रहे हैं कि स्टार्टअप्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जितने इनोवेटर्स हैं उनके लिए आने वाले टाइम में बात होगी। एक प्री कोविड एरा था आपके लिए और एक पोस्ट कोविड एरा है। अब सारी स्ट्रेटजी इसके अकॉर्डिंग होगी, आपको इसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी होगी। आपका ओवरऑल क्या है? अगर मैं डोमेन की बात करूं, टेक्नोलॉजी बेसिकली, साइंस, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इन सब की बात करूं तो आप वन बाय वन जो आप इस पे बताना चाहें हमको प्लीज।
Okay, so let's begin with agriculture because मैं secretary food थी इससे पहले almost for 2 years, close to 2 years. और अभी जो है सबसे ज्यादा दिक्कत भी जो आ रही है वो खाने को लेके आ रही है, क्योंकि हमें एक तरफ तो हम स्प्रिंग सीजन में हैं जिसमें हमें अपने खरीफ के क्रॉप्स की मतलब व्हीट, मस्टर्ड और चना, पल्सेस, इन सब की हमें हार्वेस्ट करना है. वो हार्वेस्ट का काम शुरू हो गया है. प्लस हमें जो लोग हैं जो स्ट्रैंडेड हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस कंट्री में, उनको हमें या तो राशन, सूखा राशन देना है या हमें उनको कुक्ड फूड देना है. तो कम्युनिटी किचन इंपॉर्टेंट है. तो आई थिंक फॉर द इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज हमारा जो टोटल वर्कफोर्स है अराउंड 600 मिलियन पीपल, उसमें से 53% लोगों को सस्टेनेंस जो है वो एग्रीकल्चर एंड अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से मिलता है. तो बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस रहेगा. और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है जो होने वाला है, बिकॉज मैं 90s के दशक में जब स्कूल में थी तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर था, वो 70% कंट्रीब्यूट करता था जीडीपी को. आज की तारीख में वो ऑलमोस्ट 50% के करीब, 50% से थोड़ा लगभग के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, और सर्विसेज सेक्टर 55 के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, मे बी लिटिल लेस एग्रीकल्चर. बट अभी आने वाले टाइम में जहां इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज को स्टार्ट होने में थोड़ा समय लगने की गुंजाइश हो सकती है, वहां एग्रीकल्चर कैन बी अ ह्यूज सस्टेनर. एंड एग्रीकल्चर के साथ जुड़ा हुआ हमें जो है ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, बिकॉज अभी लोगों का फोकस जो है वो है वेलनेस, हेल्थ के ऊपर, है ना, अच्छा क्वालिटी फूड स्टैंडर्ड्स के ऊपर बहुत ध्यान जाएगा, बिकॉज बीमारी ने ऐसा सबको अपने बॉडी, अपने फिजिकल चीजों के बारे में इतना सचेत कर दिया है. राइट. तो ये इम्पोर्टेंट होगा. दूसरा मुझे लगता है कि टेक वर्ल्ड के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो पुलिसिंग हो, पुलिसिंग में साइबर क्राइम्स पे बहुत अटेंशन जाएगी. बिकॉज अभी ये जो कोविड का दौर है ये एक फेज है, जैसा कि रिसर्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड और जैसा कि हम लोग न्यूज में पढ़ रहे हैं कि अभी ये कुछ फेजेस में आएगा. और अभी क्योंकि लॉकडाउन बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड है, जब ये धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में खुलेगा तो हो सकता है कि कुछ केसेस में दोबारा से एक सेकंड वेव हम महसूस करें, जैसा कि बताया जा रहा है, टॉप साइंटिस्ट जैसा कि रिसर्च करके बता रहे हैं. तो ऐसा हो सकता है कि हमें बहुत लंबे समय तक जो है घरों में कन्फाइंड होके ही बहुत सारी चीजें करनी पड़े. तो घर से रिलेटेड जो चीज होंगी, जो लोकल चीजें होंगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, चाहे वो एंटरटेनमेंट हो, चाहे वो जैसे आप देख रहे हो अभी म्यूजियम्स हो, चाहे फिल्म्स हो, चाहे कॉन्सर्ट्स हो, सब आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आ गए हैं. अब हम फेसबुक का, हम टेक्नोलॉजी का बहुत इन डेप्थ इस्तेमाल कर रहे हैं. तो मैं एक चीज वार्न करना चाहती हूँ, मतलब एज अ बिकॉज टेक्नोलॉजी से हम ऑड ना हो, बिकॉज इट इज अ गुड एज अ सर्विस प्रोवाइडर, बट इट शुड नॉट बिकम अ मास्टर, बिकॉज देन यू विल हैव टिरनीज ऑफ टेक्नोलॉजी. वो भी हमें ध्यान रखना है, बिकॉज साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चीज होगी. साइबर पुलिसिंग we will have to be better than the hackers and the fishers and the spammers, है ना. तो वो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी. और आई थिंक यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज की ट्रेनिंग का, स्किल अपग्रेडेशन का, इवन इन टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग का, बैकएंड्स का, तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में मुझे लगता है कि हो जाएगा. वी विल बी फाइटिंग अ लॉट विद इनविजिबल्स, इनटेंजिबल्स. जैसे कोविड है, ये इंटेंजिबल है. टेक्नोलॉजी है, ये इंटेंजिबल है. साइबर क्राइम है, ये इंटेंजिबल है. विजिबल, इनविजिबल आर्मीज के साथ हमारी लड़ाइयां अभी थोड़े समय तक मेरे ख्याल से जारी रहेंगी, बिकॉज ये थोड़ा प्लूटोनियन एस्पेक्ट भी है, बिकॉज आई डू अ लिटिल बिट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एज माय हॉबी. So I think it is all very deeply connected, because Uranus is a planet which has moved into Aquarius. It is a domicile for Aquarius. It is the higher aspect of Saturn. And I think it will bring a lot of discipline in our lives. So आजकल जो लोग घर से काम भी कर रहे हैं, तो lot of time management and a lot of discipline is happening. If you have to attend a meeting on Facebook, you have to be there on 7 o'clock sharp. Yes. I think those good things will happen. And technology ke liye, I think till 2024 there'll be a lot of churning in technology, as per my combined study, I can say, on a lighter note also.
आई थिंक दैट्स रियली ऑसम मैम। एक चीज ना, वैसे मैं कई क्वेश्चन ऐसे भी पूछ रहा हूँ जो आपको लगेगा कि कहाँ कोई डिस्कशन नहीं है ऐसे, बट एक क्वेश्चन अभी आया आपकी बातें सुन के जो मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, अपॉर्चुनिटी है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जितने मेरे फाउंडर्स हमारे साथ काम करते हैं, दैट सीनियर फाउंडर्स, कुछ लोग हमारे साथ काम करते हैं जो 50-60 साल के भी हैं, और उनका स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी जो ये सिचुएशन आई ना, तो दे आर स्ट्रेस्ड, और स्ट्रेस भी हैं, और दूसरा दे आर नॉट एबल टू मैनेज दैट स्ट्रेस, परेशान है, ज्यादा काम करना पड़ रहा है, एम्प्लॉयज के साथ क्या करें, ये क्या करें। सो आज आप मुझे ये चीज बताएं, ये थोड़ा सा आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है। आज का दिन भी जो आपका रहा होगा वो बहुत कोई आसान नहीं रहा होगा, 7 बजे के पहले जो दिन बीता होगा आपका, आपका जो एंटायर करियर रहा है, दैट आई हैव रेड एवरीथिंग अबाउट यू, राइट। सो एक तो चीज है कि आपने कैसे मैनेज किया हुआ है कि ये वाली लाइफ, एक आईएएस की लाइफ इतनी, कि फिर भी आपसे जब हम बात करते हैं तो जो हैपनिंग तरीके से, स्माइलिंग तरीके से आप बात करते हैं। लास्ट कॉन्वर्सेशन में मेरी बात हो नहीं पाई थी क्योंकि मैंने एक लाइन ही बोला था, वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं है कि आपको देख के लगता नहीं है कि इस तरीके। तो डेफिनेटली यू आर वर्किंग रियली हार्ड ऑन दैट पार्ट ऑल्सो, कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करके रखा जाए, कैसे स्ट्रेस आने पे भी या टेंशन आने पे भी एक्शन उस तरीके से हो। आपका मैं सजेशन चाहूंगा, क्योंकि ये आप यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट, कि ये जो लोग स्ट्रेस में हैं, परेशानी में हैं इस पेंडेमिक की वजह से, कैसे अपने आप को कूल रखें, कंपोज रखें, और तब एक्शन लें। प्लीज टॉक अबाउट दैट। Okay, so thank you, Sumit. I think this is something which is a very relevant question, और ये मेरे बहुत दिल के अजीज क्वेश्चन भी है, बिकॉज मैं बहुत डे वन से, इनफैक्ट मैं आईएएस एसोसिएशन की लिटरेरी सेक्रेटरी भी हूँ। तो जिस दिन पहले दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था, मैंने सभी को, जो हमारा पूरा बुक क्लब है, उसमें हमने सभी को मैसेजेस भेजा था कि प्लीज टेक केयर ऑफ योर फिजिकल वेल बीइंग, मेंटल वेल बीइंग, इमोशनल वेल बीइंग एंड स्पिरिचुअल वेल बीइंग, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आज इतने सभी जो फेसबुक लाइव पे हमारे दर्शक हैं, मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि देखो, ये समय सबके लिए एक जैसा है, तो आप इसमें अकेले नहीं हो। बिकॉज कई बार हमें ऐसा लगता है ये हमारे साथ ही चीजें हो रही हैं, तो हम ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और कोविड जो है, ना तो वो ऊंच देख रहा है, ना वो नीच देख रहा है, ना वो आईएएस ऑफिसर देख रहा है, ना वो कोई आम इंसान देख रहा है। क्योंकि बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को कोविड हुआ भी है, डॉक्टर्स को भी हुआ है, और आम इंसान बचे भी हैं। सो ये बहुत टेक्नोलॉजी की तरह से ये एक लेवलर है। तो इसमें मेरा आप लोगों को बहुत ही विनम्र रूप से निवेदन है कि देखो, मुश्किल का दौर जरूर है, बट ये भी गुजर जाएगा, है ना, जैसे और दौर है, ये भी टेम्परेरी फिनोमिना है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि एंग्शियस मत हो। और जो रूटीन है, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज पाई है कि अगर आप अपने रूटीन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो और ज्यादा सोचते नहीं हो, बिकॉज इफ यू डू फिजिकल एक्टिविटीज, देयर आर सम टाइम्स इन लाइफ व्हेन यू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ बाय फिलिंग योर डे विद अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, विद अ लॉट ऑफ मेंटल एक्टिविटी, सो यू हैव नो टाइम टू थिंक अबाउट एनीथिंग, है ना। तो आई थिंक अगर हम ये कर पाते हैं, और स्ट्रेस मत होइए, परेशान मत होइए, बिकॉज सरकार है आपके साथ और वो आपके बारे में सोच रही है। आज ही भारत सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है मेंटल स्ट्रेस जिन लोगों को हो रहा है उनके लिए। ये हम लोग सबके सजेशंस पे था कि इस तरह की हेल्पलाइंस होनी चाहिए, जिससे लोग बात कर सकें अपनी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम में इशू होगा। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप आराम से इस समय को बिताएं, इसको एक नियामत की तरह से समझें कि जो चीजें या जो हॉबीज आप करना चाह रहे थे उसके लिए आपके पास समय नहीं था, उनको पकड़ लीजिए। जिन लोगों से आप बात नहीं कर पाए थे उनसे आराम से तसल्ली से बात कीजिए। जो चीजें आपने सीखी नहीं थी, जैसे मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आती थी, आज मैंने लॉकडाउन के शुरू में किसी के कहने पर फेसबुक पे हिंदी में लिखना शुरू किया, वो टाइप डाल के, और आज मुझे वो माइग्रेंट लेबर के लिए इतना काम आ रहा है, वो हिंदी में लिखते हैं, उन्हें हिंदी में जवाब दे पा रही हूँ, जिससे कि वो मुझे बहुत बहुत दुआ दे रहे हैं। तो अगर हम अपना स्किल अपग्रेड कर लेंगे तो उनको लग नहीं रहा है कि वो किसी आईएएस ऑफिसर से बात करें, क्योंकि जैसे वो हिंदी में लिखते हैं वैसे ही मैं अपनी छोटी छोटी मैं भी हिंदी में लिख देती हूँ, तो उनको लगता है कि हाँ, वो किसी अपने जैसे ही इंसान से बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अपने स्किल्स के लिए अपने फ्यूचर के तरफ ध्यान दो, प्रेजेंट में मत स्टक अप रहो, पास्ट के बारे में मत सोचो, क्योंकि हमें ये प्रेजेंट और ये पास्ट तो गुजर जाएगा, हमारे आगे आने वाला कल हमें देख रहा है। उसके लिए हम आज क्या तैयारी कर सकते हैं वो करें। और मेरे ख्याल से अच्छा समय आएगा, बहुत अच्छा समय, जो हमने कभी शायद पहले नहीं देखा है, जिसमें हमारे रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे, दूरियां जो हैं लोगों के बीच में कम होंगी,
कुछ दिक्कतें भी आएंगी, बट शॉर्ट टर्म में सैक्रिफाइस और लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स हमें देखने को मिलेंगे। और शायद हम कम में गुजारा करना, लेस इज मोर, मिनिमलिज्म जो चीज है उसमें हम जीना सीखेंगे। अगर कुछ भी हो, थोड़ा कम भी खा लेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फर्क पड़ेगा। कपड़े अगर वही, क्योंकि मैं रोज एक ही कपड़ा पहन के ऑफिस जा रही हूँ, क्यों मुझे लग रहा है कि इन्फेक्शन होगा तो कम से कम उसी को धो रही हूँ, उसी को कर रही हूँ। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब कि अगर स्टाफ नहीं है या कुछ नहीं है तो कुछ नहीं, ठीक है, ये भी एक दौर है और इस दौर में भी अपने अपने लुत्फ हैं। तो हमें फोकस करना चाहिए पॉजिटिव चीजों पे। कभी अगर हताशा हो, निराशा हो तो कोई बात नहीं, वो थोड़ा समय है, अच्छा म्यूजिक सुनिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मूवीज देख लीजिए। आजकल तो इतना कुछ है टेक में, बट अपने स्क्रीन टाइम का भी ध्यान रखिए, बिकॉज मुझे लगा ओवर एक्साइटमेंट में मेरा स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया था, तो अभी मैंने उसको जो है इंश्योर कर लिया कि मैं लिखूंगी ज्यादा और स्क्रीन पे कम दिखूंगी। So that also helped in a way. Take care of your physical body parts, your lungs. I blow a balloon every day in the morning to keep my lungs intact. I do a little bit of breathing exercises because this is what I did also for Kailash. I used to blow. I can't blow the conch. मतलब वो मुझे शंख बजाना नहीं आता है अभी, बट मैं बलून रोज फुलाती हूँ टू चेक कि मेरी लंग कैपेसिटी अच्छी है, बिकॉज पल्मोनरी फंक्शंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस टाइम। तो आप लोग का बलून फुलाइए, अगर नहीं है तो लेने मत चले जाइएगा बाहर मगर। बहुत वरना वो मोटिवेट होकर जनता निकल जाती है। ये भी मोटिवेट होकर जनता निकल जाएगी, मतलब कि मैम ने बोला है कि बाहर नहीं जाना है, क्योंकि घर के बाहर मैं घूम रही हूँ, पकड़ में आ गए तो घर वापस भेज दूंगी। That's really true. मैम ये बिल्कुल सही सजेशन मुझे लगता है मेरे व्यूअर्स को पहुंचा है, एंड वी हैव टू प्रैक्टिस दैट। मैम एक लास्ट मैं सेगमेंट में जाऊंगा, उसके पहले एक प्रतीक जैन है, स्टार्टअप फाउंडर हैं। इन्होंने शायद आपका लास्ट एपिसोड आपका मेरे साथ देखा था, जिसमें मैंने पूछा था गवर्नमेंट को कैसे इनोवेटर्स हेल्प कर सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है कि मैं क्वेश्चन देख के समझ सकता हूँ, क्योंकि हमारे ही इंक्यूबेटेड जुड़े हुए हमारे स्टार्टअप हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो इन्होंने एक क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे लेता हूँ, इनको देखा, हाय सुमित, इज गवर्नमेंट वर्किंग ऑन हाउ पीपल नो अबाउट कोविड टेस्टिंग सेंटर्स ऑन देयर मोबाइल एप्लीकेशन? इफ यू रिमेम्बर हमारी बातचीत हो रही थी जिसमें आपने बोला कि भाई ऐसा कोई कुछ करे, छोटा ही सही, बट ऐसे कुछ सपोर्ट कोई करना चाहे तो कर सकता है। So he is the one who believes. तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा क्विकली अगर आप एक दो लाइन की, कैसे ये लोग सपोर्ट कर सकते हैं? That's a very nice question. In fact, if you remember in the last session that we had with your organization, I had suggested that we should do small things rather than looking at big things. And very recently on my Facebook, I had told somebody to map the utilities in the city, so that people know, not the public utilities, but the private utilities. So somebody has started something called My Pin Code for Rajasthan. और वो ऑलरेडी स्टार्ट, इतनी खुशी हुई देख के कि किसी ने, मतलब 2 दिन पहले ही ये वेबिनार हुआ था और किसी ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया। तो प्रतीक, आपने जो बात पूछी है वो बहुत रेलेवेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने दोनों अपने एप्स जारी किए हैं, और एवरी डे देयर ह्यूज नंबर ऑफ व्हाट यू से सर्कुलर्स व्हिच आर कमिंग आउट, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत सारी एप्स भी बनी हैं, आरोग्य सेतु बनी है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की भी अपनी कोविड-19 COVID कोविड-19 करके अपना ऐप है। बहुत सारे टेक वो सब चीजें एप्स ऑलरेडी बना रहे हैं। मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले उन सब फैसिलिटीज को या तो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का साइट है उस पे, या डीओपी गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का जो साइट है उस पे आप वो एप्स सारी देख लें एक बार। और उसमें अगर आपको लगे कोई मिसिंग गैप्स है तो इंस्टेड ऑफ, सी वन थिंग दैट आई वांट टू टेल ऑल द टेक पीपल इज, डू नॉट डुप्लीकेट। मतलब हमें दोबारा से फायर को री इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी शुड डू इंक्रीमेंटल चेंजेस, है ना, बिकॉज आप अपनी जो एनर्जीज हैं उनको सेम चीज को रेप्लिकेट करने में लगाएंगे तो क्या होगा कि आप रेलेवेंट नहीं रहेंगे और इररेलेवेंस ऑफ टेक्नोलॉजी पे हम लोग चले जाएंगे। सो प्लीज लुक एट व्हाट एग्जिस्ट्स in the market and try and then look at what incremental changes you can add for value addition in those pre-existing apps, because one person cannot download 20 apps to do the same thing, because सरकारी ऐप तो वो करेगा ही करेगा और फिर वो प्राइवेट ऐप भी करेगा, तो उसका फोन में इतनी कैपेसिटी नहीं होगी आजकल के जो फोन्स हैं। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इंक्रीमेंटल चेंजेस की तरफ देखो, इंप्रूवमेंट्स की तरफ देखो, एप्लीक वर्क की तरफ देखो टेक्नोलॉजी में, बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट इज गोइंग टू बी मोर सस्टेनेबल इन टाइम्स टू कम।
वेरी नाइस प्रतीक, आई थिंक दिस इज द बेस्ट सजेशन वी गॉट। ऑलरेडी जो एग्जिस्टेंट है आपको कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बिल्कुल करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ऐड वैल्यू कर सकते हैं, और देन ओनली वी कैन गो फॉरवर्ड। वेरी नाइस। मैम एक क्वेश्चन, अच्छा व्यूअर्स लास्ट में क्वेश्चन भेजना शुरू कर देते हैं, हमारा टाइम खत्म होने वाला, क्वेश्चन अब मैं ले नहीं पाऊंगा, प्लीज आप सुन लें हमारी बात की, मेरे पास ही बहुत है और अब खत्म होने वाला टाइम। एक हाँ जी। लास्ट मैम, उमेश उमेश अग्रवाल हैं, आई डोंट नो दिस क्वेश्चन हाउ मतलब कितना रेलेवेंट आपके लिए है, बट इफ यू कैन से समथिंग ऑन दिस। तो उमेश अग्रवाल ये डीआईटी यूनिवर्सिटी के इनोवेशन सेल के डायरेक्टर हैं, और ये कह रहे हैं कि डू गवर्नमेंट हैव एनी प्लान टू सपोर्ट स्टार्टअप्स? सो ऑफ कोर्स ही इज टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट। This is not something which is happening in the COVID times. It is already, we have lot of policies in the pre-COVID times. I will request you and draw your attention to our website, both of DST Government of Rajasthan and DST Government of India. And we have two schemes. One is the Nidhi Prayas scheme. And one is the Technology Business Incubator scheme, which we in short call as the TBI scheme. Yes. In both the schemes, we not only provide funds for what you say, at the takeoff stage, but we also provide funds at the seed stage where you just have an idea, right? And we also do a lot of scouting of innovation and scouting of good startups. So my request to you is, please look at those schemes and please feel free to apply. All our contact details are available in the websites. देखो, यूनिवर्सिटीज और जो टेक्नोलॉजी और जो डिजिटली लिटरेट लोग हैं, उनको तो मैं ये कह सकती हूँ भाई, सरकार और आपके बीच में तो कोई भी मतलब डिस्टेंस हो ही नहीं सकता, बिकॉज आपको एक ईमेल लिखनी है हमें और हम आपको उसका जवाब देंगे, और बाकी व्हाट्सएप और बाकी सारी चीजें हैं ही आपके पास। तो प्लीज फील फ्री टू कम अप विद योर प्रपोजल, बट प्लीज डू ड्यू डिलिजेंस। बिकॉज हो क्या रहा है कि कुछ चीजें जो हैं वो, जैसे हम आईपीआर में प्रायर आर्ट सर्च करते हैं ना, कि जो पेटेंट हम लेने जा रहे हैं कहीं वो पेटेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं करता, उसी तरह से मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी में भी एक प्रायर आर्ट सर्च आपको करनी पड़ेगी कि जो आइडिया आप लेके आ रहे हैं स्टार्टअप का, वो आइडिया ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग तो नहीं है, क्योंकि देन वी डोंट गेट एक्साइटेड बाय द आइडिया, बिकॉज दैट आइडिया ऑलरेडी एग्जिस्ट। सो आई थिंक दैट इज समथिंग। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, मैंने आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी सर को भी ये कहा है, रिक्वेस्ट करी है उनसे, जैसे बहुत सारे लोग सैनिटाइजर्स बना रहे हैं, बहुत सारे लोग मास्क बना रहे हैं, अलग अलग नाम से सैनिटाइजर्स आ रहे हैं, है ना, अलग अलग स्टेट्स में रिसर्च होके अलग अलग तरह के सैनिटाइजर्स बन रहे हैं, कोई अल्कोहल से बना रहा है, कोई किसी से बना रहा है, कोई किसी कैसा बन रहा है, मतलब बहुत। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है कि एक एग्रीगेशन ऑफ स्टेट वाइड people who are making these masks, people who are making these sanitizers, people who are making anything, should all come together on a common platform. So if people can work on this common platform, because मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में क्राउड सोर्सिंग, not just crowd funding, but crowd sourcing will become very very important, कि जहां पर आप crowd source करते हो information और एग्रीगेशन प्लेटफॉर्म्स बनाते हो, ओलाज एंड उबर्स एंड ओलेक्स की तरह से, बिकॉज ये बहुत बहुत जनता के, आम लोगों के काम आने वाली चीजें होंगी। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो सजेशन आई थॉट दैट आई शुड गिव टू यू। मैम जिस तरह से आप आंसर दे रहे हैं और जिस तरह से बातचीत हो रही है, मैं तो चाहता हूँ कि घंटों में बातचीत करें, बट टाइम ऑफ कोर्स लिमिटेड है, ऑलरेडी 30 मिनट्स हो चुके हैं। मैं जाते जाते, और मुझे सारे क्वेश्चन जो मैं आज समझना चाह रहा था आपसे आ गया है, एंड इट विल हेल्प आवर व्यूअर्स। आई विल मेक श्योर दिस शुड रीच टू 2000-3000 पीपल थ्रू आवर यूट्यूब चैनल एज वेल। एक जाते जाते मैम मेरी ख्वाहिश है, क्योंकि मैं भी पोएट्रीज, कविताएं लिखता रहा, और आपको देखने के बाद तो फिर से चालू किया मैंने, तो मैं ये रिक्वेस्ट है मेरी, इफ यू आर कंफर्टेबल, कि कोई भी 2 लाइन जो आपने लिखी हो खुद की, वो जरूर सुना दें हमको। sorry, you didn't tell me this before. No, please. ये मेरी इच्छा है, और वो भी आपके कंफर्ट पे था, तो ये जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, तो इंसान थोड़ा सा। So I just opened my poetry book. I have one which is a very old one. Okay. So I will just read something. It's a self-composed poem, but it's an old one. But ये शायद थोड़ा सा हौसला अफजाई जो समय है उसके लिए अपने आप ही खुल गया है, तो इसलिए मैंने चूज नहीं किया है। So I think मैं ये पढ़ देती हूँ। कश्ती को क्षितिज में डूबते देखा है, कश्ती को क्षितिज में डूबते देखा है, आंखों की नमी को समुंदर की गहराई में उफनते देखा है, सूरज को धरती पर पिघलते देखा है, इंसान को सितारों में बदलते देखा है, रिश्तों का गणित बनते बिगड़ते देखा है,
ममता को बचपन की हट से पिघलते देखा है, मोहब्बत को महबूबा के आघोष में सिमटते देखा है, चेहरों के आईने में दुनिया का मंजर देखा है, कुदरत के करिश्मे में कुदरत के करिश्मे में खुदा का इशारा देखा है, जोश के सैलाब को कामयाब देखा है, आग में पसीने को राख होते देखा है, तकदीर को मेहनत से ताबीज बनते देखा है, तकदीर को मेहनत से ताबीज बनते देखा है, हर जर्रे में तेरा एहसास देखा है, हर जर्रे में तेरा एहसास देखा है, हर एहसास में तेरा कमाल देखा है, संगमरमर की मूरत में यकीन देखा है, हर यकीन में सब्र का मुस्तकबिल देखा है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इन मुश्किल घड़ियों में, तो सब्र में जो है, सब्र का मुस्तकबिल हमने देखा है, वो विश्वास से कायम होता है। और आप लोग जो भी हैं, जिस भी इष्ट में बिलीव करते हैं, क्योंकि हम लोग सब भी उसी एक इष्ट की एक अंश ही हैं, तो आप अपने ऊपर भी हौसला बनाए रखिए, अपनी हिम्मत बनाए रखिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मुश्किल दौर से जो हैं बहुत ही अच्छे और कामयाब, जैसे सोना आग में तप के निकलता है, उसी तरह से हम इस मुश्किल दौर से भी गुजर जाएंगे। मैम थैंक यू सो मच, दिस वाज रियली ऑसम। और आपको स्क्रीन पे इसलिए पूरा लेके आया था कि मैं इसके क्लिप निकालूंगा ये, और आई शुड मेक इट वायरल ऑन व्हाट्सएप एंड ऑल, बिकॉज दिस इज रियली मोटिवेटिंग। और आपने बिल्कुल रेलेवेंट इस शो के हिसाब से कविता सुनाई। ये अपने आप खुल गया। I am so lucky in my life, you know. I believe I am very lucky. मेरे साथ ऐसा ही होता है मैम, सारी चीजें पॉजिटिव होती है। सबसे पहले आप ही मेरे साथ शो पे है, तो ये सबसे पहले पॉजिटिव है मैम। और इट्स ग्रेट नोइंग यू, कनेक्टिंग विद यू। और मैं सोचता हूँ जिस दिन लॉकडाउन खत्म होगा, मेरा पहला काम कि मैं आपसे पर्सनली आके मिलूं जितनी जल्दी हो सके। और हालांकि अभी टाइम तो लगेगा, और आपसे गाइडेंस हम लेते रहेंगे। और फिर मैं बताऊंगा कि मैम हाउ एक्टिवली वी आर वर्किंग। और सच में मेरा परसेप्शन गवर्नमेंट को लेके चेंज हो गया आपसे बात करके, क्योंकि मुझे आप मैम हमारे इंक्यूबेशन सेंटर आएंगे, वे रेग्रेसिव वर्किंग, बट मुझे सब लोग बोलते थे गवर्नमेंट के पास क्यों नहीं जाते। तो आई यूज्ड टू थिंक कि आई विल बी वेस्टिंग माय टाइम, मैं फॉलो करता रहूंगा, कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, जो लोग बैठे होंगे उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। अब मैं मेरी बस एक चीज आपको कह दूं कि मेरा मेरा 20 साल हो गया मुझे नौकरी में, और मुझे अपने काम से बहुत ज्यादा प्यार है, क्योंकि मुझे लोगों से बहुत ज्यादा प्यार है। इसलिए मेरा अब केवल एक ही ध्येय है, जो भी मुझे प्राप्त करना था वो मुझे सब कुछ मिल चुका है। तो अब मैं अब्राहम मैस्लोव की वो उस पिरामिड के सबसे ऊपर वाली उसमें बैठी हूँ, जहां पर मुझे केवल एक ही मेरा मंसूबा है कि मुझे, जो आप जैसे लोग हैं या जो अनेकों ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिली नहीं हूँ, जिनको गवर्नमेंट के बारे में कोई भी संशय है, मैं चाहती हूँ कि जब वो हमसे इंटरेक्ट करें, हमारे विभागों से इंटरेक्ट करें, तो वो एक बहुत अच्छा अनुभव लेके सरकार के साथ काम करने का एक बहुत अच्छा अनुभव लेके जाएं, because we are the face of the government. That has been and will continue to be the only aim that I have in my life, till whenever I have this life and breath in me. So please don't let one bad experience of the past deter you from meeting us, because हम लोग public servants हैं, और आप से ही हमें हमारी जीवनी मिलती है, हमारी livelihood is dependent on all of you and all the strangers who are calling me, who are reposing their trust on me, who are crying and sharing their personal problems with me. I think it takes a lot to hold that trust. तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि एक सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए मैं और हमारी सभी सरकारें जो हैं, आप सभी लोगों के लिए काम कर रही हैं, और आप सब लोगों की दुआ चाहते हैं, ताकि हम लोग जो हैं together we can come out of this crisis and always remain as part of this very very beautiful country and this very very evolved society जिसको हम देखना चाहते हैं. So thank you, Sumit. It's really very wonderful talking to you. Thank you so very much. माय प्लेजर मैम। और आप जैसे लोगों से मिलना, मैं तो समझता हूँ कि आपसे बातचीत करना पॉजिटिव आउटकम है इस कोविड का मेरे लिए, क्योंकि ऐसे पॉसिबल नहीं होता। So thank you so much, ma'am. Thank you so much for giving me time, and we'll definitely connect. Thank you to all the viewers who connected. It's a very, very humbling experience for me. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. Thank you. Have a great day. You too. So, मेरे व्यूअर्स, ये थे मुग्धा सिन्हा मैम। और आपने देखा कि शी इज हेडिंग द डिपार्टमेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और कितने आराम से, कितने पोलाइट तरीके से और कितने अच्छे से इन्होंने हमको बताया कि
कैसे सारी चीज़ें हो सकती है, कैसे हम कर सकते हैं, कैसे स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, कैसे फ्यूचर को देख सकते हैं, कैसे टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस वाज़ सो एनलाइटनिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो अपने अगले गेस्ट के साथ अगले एपिसोड में ये पूरा वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टार्टअप चौपाल टीवी पे अवेलेबल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दैट। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस टुडे। हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय बाय।